Accordingly, it is proposed that a suitable amendment to by the applicability of the timelines to that provision as well. So अब earlier जो 14 days का time period था, वो 14 days का कोई मतलब ही नहीं रह गया. जैसे आपने accept किया डाला, A को decide करना ही नहीं है ज़्यादा, उसको देखना default तो है ही already, so it will be accepted immediately. So you can initiate the process immediately. Why this provision has come? Because when we meet with the bankers, they are saying once we file the application, it takes months to decide by the A to admit the case. So this will reduce the timelines. That is the main purpose. Because right now, somehow, what I feel is bankers are losing trust on the IBC more, and they are looking at the SARFAESI more. Because they are saying by SARFAESI, the items or the assets are in their control rather than giving to the RP. So nothing is in their hand. And again, it takes a lot of time. Even then they decide on the commercial wisdom or whatever they apply, whatever they want to give benefit to the CD, they can empower under the SARFAESI Act with the board. But 2-3 problems are there for which the people are looking at IBC. One is moratorium under section 14, that no other actions will be taken care, will be initiated during the moratorium period. Second, you get a legal backing. So tomorrow, CVC will not ask them a question, difficult question, ki, okay, why you are giving a haircut of 10% or 20%. In IBC, even if they take a 90% haircut, no one is going to ask a question to the bankers. So basically, for this purpose, they are looking at the IBC. Otherwise, they are looking seen on the IBC. Even RPs are looking IBC, that new cases should not be taken without a proper understanding, because a lot of reporting. I am a member of IC Triple IPI. Now every month I have to give Google form for all the cases. I have to again give the information on the IBBI. I have to give CRP 1 से लेके CRP 8. Then lot of things I have to give. All these things will come. अगर IU के पास जाएगा, एक system होगा तो वहाँ सब चीज मिल जाएगा. अभी every time, see, once the case is admitted, you have to file one application and inform to the IBBI that this case has been admitted. To the IBBI also and to the Triple I also. IPA प्लेटफॉर्म अलग-अलग है दोनों. So, इनका ये माइंडसेट है. अगर नहीं अगर आपको मालूम है कोर्ट ने केस दे दिया, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए थी. मैं क्यों उसमें आपको इन्फॉर्म करूं कि चालू हो गई. और वहां से ज्यादा ऑथेंटिक आएगी आपकी बजाय. यू आर इंडिविजुअल, दैट इज इंस्टीट्यूशन. राइट नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप बोलते हो कि कोर्ट में केस डिसाइड हो गया सपोज 1 नवंबर को. आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन टिल डेट, बिकॉज उनको 10 दिन लगते हैं मेरे को इंटीमेट करने में. And for me, CRP will be taken as 1 November. So everything, my timelines goes into the that way, that first से हमको चालू करना है. You are saying 180 days में करना है. So everything is right now. We are looking at the information technology is where everything thinking that you get a copy, okay, you start your process. But even if you have a copy from the NCLT order copy, if you go in the bank and they will say, okay, इसका certified copy कहाँ है, या इसका original copy कहाँ है, इस पे ठप्पा कहाँ है. They will also not looking at the website, looking at whether it is uploaded or not. अरे भाई वहां से डाउनलोड कर लो ना. In 2-3 cases where we got a copy also, it is not uploaded on the NCLT site. So it was very difficult for us to tell to the bank कि बस freeze तो कर दे, because of relationship it was got done. But otherwise, it is this type of practical problems no one is listening at. And where the RP will go, if I have any doubt or anything, where I have to go. So this type of forums we are getting information on how to do it. And because in Bombay or wherever we have a friends, we call them and ask them कि बस ऐसे समय में क्या करें. अब वो जमाना गया कि उसमें आपको कोई आपको उठा के लेके चला जाएगा. वो सब एक ही बार हुआ था. अब होता नहीं, because everyone is looking at this platform. Okay, now we are going right back. Here, this section, this proposed amendment is for section 7. Why the section 9 is also not recorded? Because in the previous slide page,
they have given the opportunity for both section 7, section 9. Correct. Double A will rely on that date. Yes. Here in the amendment, only section is proposed, 7. Section 7. No, section 7, what they are saying is mandatory, it will be get admitted. Right. So that So the banker will be happy and your case will be get immediately started. So that in big cases, basically they are looking at the big cases where they can start CRP but immediately. question is for section 9 cases. Section 9 cases, A will require to see the records, defaults, they will give a hearing time and all other In things. previous page, they already Yeah, they are told that that care is already taken for section 7, section 9 also. Section 7, they are saying ki mandatorily you have to provide. So Section 9 also, they told that you have to mandatorily provide. But what will happen after that, they have not shown in this paper. Now, restricting the right of promoter in to propose an IRP. So fourth provision on the page 4 is actually in section 9 or section 10 cases, generally right now, the OC may propose the name of IRP. It is for section 10 where CD cannot appoint the CD IRP. cannot appoint the IRP. It has to be So appointed from the list of from the list of penalties. independent. From list of penalties. Because for the independence, to bring the To maintain the integrity and independence. integrity of independence. So that is welcome change. Basically, this should be done earlier also. So now, empowering A to impose penalty for violation of code. So currently, section 235 provides punishment to be imposed in contravention of the provision for where the no penalty or no punishment has been specifically provided in the code. So 235A में जो provision कर रहे हैं वो RP पे भी applicable है? वो किसी भी कर सकता है. अच्छा. Okay, now which is saying through criminal proceedings, the punishment under the provision is administered by a special court established under section under chapter 28 of the Companies Act. 20 Companies Act में जो दिया है पावर, वो जाके स्पेशल कोर्ट ही आपको डिसाइड करेगी पेनल्टी, और जहाँ पे प्रोविजन नहीं लिखे पेनल्टी और पेनल्टी एंड पनिशमेंट, तो अब वहां पे वो पावर जो है AA को भी दे दी है. वो भी स्पेशल कोर्ट भी पहले भी स्पेशल कोर्ट के नाम पे NCLT ही जाते थे, क्योंकि फॉर ऑल द MCA केसेस द कोर्ट इज बेसिकली NCLT. So for all the company related matter, earlier 2 provisions are there. You can go to the NCLT or to the High Court. The High Court is already been overburdened. So they are giving power to the A. And again, तो आजकल NCLT भी overburdened हो गया. वहाँ काम करने तैयार नहीं. Staff selection है नहीं. सर नहीं एक ही केस है ना सर. सर एक्चुअली क्या है कि सर एक्चुअली कुछ तो डिसीजन वो लेते हैं, जैसे 12A का विड्रॉल है वो भी पेंडिंग चलते हैं 6-8 हियरिंग तक. उसमें क्यों टाइम लगाना? फटाफट निपटा दो. They keep they just have to listen it. If resolution plan, even you are saying resolution plan is submitted to the A for consideration and approval. So how much time it will take? The new BAT is coming. Commercial decision, you have already been established that COC decision is supreme. Until unless some frivolous claims or some cases are there, you should clear it within 10 days, 20 days or 30 days. Whereas it is already been taken 1 year or 2 years time. जो मैंने महसूस किया ना, यहाँ पर जो जजेस आते हैं ना, हाँ, वो डिफरेंट उससे आते हैं, कोर्ट से आते हैं, ना कि उनका माइंडसेट जो है वो वैसे ही है. क्या उन्होंने, और उनकी IBC के ऊपर पकड़ भी कम है. कोई रेवेन्यू से आ जाएगा, कोई किधर से आ जाएगा. करेक्ट. कोई दूसरी बैकग्राउंड से आ जाएगा. एक्चुअली यहाँ जो जजेस बनाने चाहिए वो इसी बैकग्राउंड से बनाने चाहिए. डबल टेक्निकल मेंबर तो होता है ना एक वो टेक्निकल मेंबर भी ऐसे ही है भाई. चलो करेक्ट. क्या बात बट सर एक IRS we cannot मेंबर बना रखा है. सर वो अब लोग चूंकि रिकॉर्डेड है, we cannot comment on the A side, but what we are saying is actually there should be some proper representative of the A side also. And again एक one case में अपने fees के केस में the NCLT have taken the help of the one of the IP also, where to take a help because what the word is Mitra. America's, yes. So they have taken that. So that way, where the cases are there, they take our view also. So they are empowering the AA for penalties. Now
it is being considered that A should also empowered to impose a penalty where it believes. So again, belief के ऊपर भी questions आएंगे. Where such person has filed frivolous or vexatious application. तो यहाँ पे भी वो पेनल्टी लगा सकता है. अब पेनल्टी कितनी होगी वो भी आगे देखेंगे हम लोग. मिनिमम पेनल्टी should not be less than 1 lakh rupees per day. So कहाँ से चालू होगा ये? 1 day कहाँ से चालू होगा वो तो एक अलग है, बट एक 1 लाख रुपीज पर डे, तो अगर एक हफ्ता भी अगर रह गया तो 7-8 लाख रुपए तो उसको फाइन लग ही गया. प्लस which may extend to 3 times of the losses caused or unlawful gain, whichever is higher. Basically higher करने पे लोचे हो रहे, यहाँ कम होना चाहिए था, whichever is lower होना चाहिए था. सेशन में लोअर होना चाहिए, हायर नहीं, क्योंकि अगर 6 महीने लग गए डिसाइड होते होते और उसने 6 महीने के बाद सोचा कि चलो 5 लाख रुपए फाइन लगाते हैं, तो आपको 5 लाख नहीं भरने पड़ेंगे, आपको भरने पड़ेंगे 6 महीने के हिसाब से, तो 160 लाख. तो मतलब वो सामने वाला भी बैंकरप्ट हो जाएगा. 1.5 करोड़ का फाइन लगा दिया उस आदमी पे, तो खुद भी हो गया. तो ये लोअर होना चाहिए, न कि हायर होना चाहिए. क्योंकि अगर आरपी के बोलते हो फ्रिवलेस है, आपका एप्लीकेशन फ्रिवलेस हो गया, जैसे हम लोग 4-5 एप्लीकेशन तो एक आरपी लगा देता है, 19(2) का लगा देगा या अपना कुछ भी लगाया, और आपने बोल दिया वो तो फ्रिवलेस है, कॉस्ट लगा दिया 1 लाख रुपए. आपने तो 1 लाख लगाया, बट इस एक्ट के बाद 1 लाख पर डे के हिसाब से अगर लगाओगे, और सपोज करो जिस दिन उन्होंने फाइल किया वहां से लगा दिया, तब तो हो गया. उसके सुबह no particular explanation of frivolous. No frivolous, and yeah, that is also on the women fancy of the A. So what is frivolous? Not defined. Not defined, vexatious, not defined. It should have So- a very limited wording, very limited. We can have a suggestion here, no? Actually, one suggestion is also given to the MCA, that this is applicable on the applicant or the respondent, not on the RP. RP के ऊपर क्यों लगाने का? क्योंकि अभी RP के ऊपर भी जा रहा है, तो RP को फीस मिलेगी 1 लाख रुपए और उस पे फाइन लगेगा 1.5 करोड़ रुपए का. Such a person में कवर हो जाता है वो. Such a person has filed. उसमें आरपी भी आ तो गया. आरपी तो 50 केस फाइल करता है दिन भर में. आपने बोला कि वो मेरे को अंदर घुसने नहीं दे रहा है, आपने तुमने गलत बोला, वो तो तुमको चाबी दे दिया था, और चाबी देने से और वो सामने रोड पे एक आदमी खड़ा था, फ्रिवलेस बोल दिया और लगवा दिया मेरे को, तो मैं तो एक ये आरपी को जरूर से ज्यादा वो डंडे मार रहे हैं सर. वो तो एक फैसिलिटेटर है दो के बीच. सर अगर उसको आप फ्री हैंड, सर that is one, and another thing, if a person who have a 10 years of experience have a standing, then only you have made him a IP, first thing, and he is here to resolve the cases, to resolve the problems. उसकी फीस जो है उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं. वो एक सीईओ जो है, जो नॉर्मल कंपनी चलाता है, उससे कहीं बड़ी पोजीशन पे वहां बैठा है, और उसको आपने क्या कर दिया, आपको उसने ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, वो आज मुझे फॉर्म जी मैंने निकाला, तो मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, 14 दिन के अंदर मैं सारे लोगों से मिलूं और उनको मैं प्रोडक्ट जाके बेच के आऊं. नाउ व्हाट यू आर सेइंग कि 14 दिन में मैं ये करूं या उसकी रिपोर्टिंग करूं, और आप चाहते हो पूरी टीम बन जाए, टीम भी बन गई. टीम बनने के बाद क्या, टीम का पैसा कौन देगा, सीओसी बोलती है इतना फीस हमको खर्चा नहीं करना है, ये नहीं करना है, बट उसको तो काम करना ही है. छोटा केस होगा तब भी उसको काम करना है, वो कहां से करेगा, और आप उसको फैसिलिटेट कैसे कर रहे हो. हर बार कुछ भी गलती होगी उससे, ये छूट गया, वो छूट गया, आप हर चीज पे 500 रुपए फाइन, 1000 रुपए फाइन, 2000 रुपए फाइन. I have studied 2-3 cases recently. एक के ऊपर 5 लाख फाइन लगा, हाँ, वो 1 साल के लिए बैन कर दिया, किसी को 6 महीने के लिए बैन कर दिया. सर द पर्सन हु आर वर्किंग ही विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. जो शांति से बैठा है उसको तो कोई फाइन लगना नहीं है. ये तो बहुत पुरानी कहावत है, आदमी गलतियों का पुतला है. कहीं हाँ, अगर आपको लगता है कि इस बंदे ने कुछ गलत किया, इसने 50 लाख करोड़ का घर बना लिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, आप उसका नेटवर्थ ले लो, हर साल आपकी इनकम ले रहे हो, आप उसकी इनकम उसको डिस्क्लोज करनी है, जिसपे आप 1% ले भी रहे हो, तो उससे फीस भी ले रहे हो,
उससे ज्यादा वो क्या देगा? पता नहीं लंदन में भी ऐसे ही है क्या? लंदन में तो सर वेरी क्लियर, मैंने लंदन का एक केस किया है अभी, लंदन का केस के आईपी के लिए से बात की है, हाँ उसके केस को अगर देखते हैं तो हम लोग उससे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फीस करते हैं, मतलब फाइल कर दो हो जाए। कुछ नहीं, वेरी सिंपल। वन केस विच आई एम हैंडलिंग, अच्छा। उसमें जो मेन कंपनी है वो यूके की है, ओके एंड यूके की कंपनी में जो लिक्विडेटर है हाँ उसने पूरी कंपनी को बेच डाला, जिस प्राइस में बेचा उससे 10 गुने प्राइस में। मैं सिर्फ इंडिया का बिजनेस बेचने की कोशिश कर रहा था, बैंकर को वो भी लग रहा है कि अरे आप तो फ्री में बेच रहे हो, जबकि बैंकर ने उस पर कम से कम 500 टाइम्स मोर का फंडिंग किया है ऑफ दैट एसेट। नाउ थिंक, मैंने जब उसके आईपी से बात किया कि एट व्हाट इज द प्राइस व्हिच यू आर लुकिंग एट सोल्ड और सम इन्वेस्टर्स टू सेल माय प्रोडक्ट, सो देन आई केम टू नो कि उनकी लाइफ तो बहुत इजी है, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि क्रॉस बॉर्डर जिस दिन आएगा उस दिन वर्ल्ड मार्केट पे इंडियन ही छा जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग जितना पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत हम लोगों ने कर ली है। Everyone is doubting on our work culture. जैसे मैं वहाँ अपनी लंदन ब्रांच को ओवरसी किया करता था, Correct. वहाँ पर क्या है, वो बड़े इजी लाइफ जीते हैं, टाइम से आएंगे और टाइम पर कर्म छोड़ के उठ जाएंगे, वो इंडियन पीले रहते हैं वहाँ। राकेश भाई, Yeah. So coming on the next point. Section 65 में the code provides penalty against fraudulent and malicious initiation of admission proceeding लिखा है। Correct. इसमें जो present situation चल रहा है, admission procedure related to discussion हो रहा है। Correct. However, no penalty is imposed on other proceedings filed before the AA. तो ये इनका जो सेक्शन 75 कन्फाइन है वो खाली एडमिशन प्रोसेस तक ही है, अदर आपका जो भी सबमिशन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। अभी वो जो अमेंडमेंट लिया है उसमें सबको ले सब कवर कर लिया है। Correct. That's why I am saying. उसमें हमारा भी एप्लीकेशन आ गया, अपने सारे एप्लीकेशन आ गए, आरपी के सारे एप्लीकेशन आ गए, 10% में सब लोग आ गए इसमें। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या कि जिस दिन एप्लीकेशन आपने किया, जो मेन एप्लीकेंट है, चाहे बैंक हो चाहे वो ओसी हो, वो या सीडी या कोई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट जो आ रहा है, उसने अगर कुछ फ्रीवियस गलत किया है तो होना चाहिए आरपी को इसमें आपको एक क्या शेल्टर मिलना चाहिए। फ्रीवियस एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकता है, लेकिन उसको प्रूफ तो होगा तभी तो पेनल्टी लेगा ना, ऐसे तो कोई मारेगा नहीं। नहीं पर सर अमेंडमेंट ये होना चाहिए to prove it has a cost ना आरपी के। सर आरपी के लिए हर चीज का कॉस्ट है, एंड आप उसको फाइन कितना लगा रहे हो? सर आप फाइन लगाओ, मैं ये नहीं कहता कि फाइन मत लगाओ, बट आप फाइन शुड नॉट एक्सीड द फीस इन फीस, यस, आइदर इट शुड बी मैक्सिमम फीस। आरपी में जो फाइन है इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द फीस अर्न्ड बाय। अरे फीस जेब से थोड़ी दूंगा मैं, 50% होनी चाहिए। नहीं नहीं पूरी ले जा भैया, जान छुड़ा। 100% भी ठीक है, वेलकम। हां 100% ले जान छुड़ा। तो वो तो बोलेगा 3 लाख फीस है तो 30 लाख रुपए बढ़ते हैं। हम लोग डे के इसमें डे के हिसाब से बोल रहे हैं सर, मैं तो बोला 6 महीने लग गए, आज 6 महीने रहेगा तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए होता है। 1 करोड़ 80 लाख हो गया। However, we have proposed RP's responsibility shall be restricted. RP should not amount payable by RP penalty should not exceed fees earned by him in that assignment. असाइनमेंट और दैट इज एप्लीकेबल इन पब्लिक डोमेन। हाँ ऑलरेडी सर, आपको तो फीस देनी है, 8% कमीशन देना है। It should not be applicable to IP, or if applicable, then it should not be more than the fees earned. No, it should be applicable to IP, but the fees should not exceed the fees on the assignment. on the assignment. नहीं तो वो 3 लाख में से 27 लाख रुपए जेब से भरेगा, तो इनकम टैक्स में क्या लेगा, वो भी बड़ा इशू है। Income tax की भी एक You चीज है। can give the combination also. RP's responsibility shall be, he will the penalty will be 1 lakh rupees, और उसको जो higher amount है ना, 1 lakh restricted to the amount of fees फीस earned in the assignment. असाइनमेंट, करेक्ट। So now वो सब नहीं होना चाहिए। नहीं वो सब 3 लाख ही मेरा Shall not be less than 1 lakh. हाँ Not exceeding upper limit भी डाल दो। कहीं भी देखिए, जो डिसीजन ले रहा है उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, करेक्ट। जो कर रहा है उसकी The better shall not be more than fees लिखो। हाँ? Shall not be more than fees. और नीचे on assignment. Minimum भी 1 लाख होना चाहिए। केस को एडमिट करना, हाँ। केस को डिसाइड करना, सीओसी को सर वी आर with the final decision of सर वर्डिंग तो कहता है कि एज अ आईपी यू आर अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, करेक्ट। व्हेन यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट Why यू should आर you be penalized?
Why should we penalize? Means, by the way, you are saying कि कोर्ट को penalize कर दो, एप्लीकेशन ही नहीं फाइल करेगा तो आरपी फाइल ही क्यों करे? अरे भैया ये तो आप ये देखो ना, कोर्ट में कितनी तरह की बेकार एप्लीकेशन फाइल करते हैं। हाँ, लॉस का लॉस भी हो जाएगा। ये वैलिड पॉइंट है क्या? तो nobody will file, the RP will not file, ना फूफे का सर, application फूफे का application, फूफे का, अरे सर, फ्रीवलेस होगा सर तो फिर उसको फ्रीवलेस है ना लगेगा। सर, आधी चीज तो उसमें इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, फिर वो बोलेगा अरे तुम्हारी रिपोर्ट ही गलत थी, तुमने फ्रीवलेस पास कर दिया, तुमको सिर्फ करना था IBBI को रिपोर्ट करना था, उसके लिए तुमने फाइल कर दी, लो 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से फाइन, 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से 2 करोड़ रुपए फाइन, 200 दिन लग गए, 2 करोड़ रुपए फाइन हो गए उसके लिए। आगे जाते हैं अभी। नाउ नेक्स्ट, 90 का भी एप्लीकेशन हेलो। हाँ मनोज जी। हाँ सर, ये जो पॉइंट है इसमें वर्ड जो है वो फ्रीवलेस है। वर्ड जो फ्रीवलेस गलत का है, मतलब ये हो गया कि देयर हैज टू बी अ मालाफाइड। मालाफाइड, तो मालाफाइड अगर नहीं है और बोनाफाइड कोई कर रहा है, एंड इफ आरपी इज एबल टू एस्टैब्लिश दैट ही इज डूइंग बोनाफाइड, आई थिंक नो पेनल्टी शुड बी चार्ज्ड, वेदर द डिसीजन इज इन फेवर और नॉट of PUFE transaction, that is a different thing, but malafied Yes. has to be established to reach up to frivolous, and that is one point. The second point is that there are judgments that the RP can be only the acts of RP can only be investigated and looked upon by IBBI and not Yes. NCLT. So since NCLT cannot look into those cases, so I think we should say that this should not be applicable on RP. And if NCLT is having any doubt, they can always send the matter to IBBI as they are sending it now. yes, yes, you are well, good suggestion, because IBBI is empowered to monitor and penalize the IPs. This power should not be with the AA. He can recommend to the IBBI to take illicit action. You are working under IBBI, not the Yes, NCLT. yes, yes. Application shall be forwarded through IBBI. IBBI. Okay, now second is 6th number, rethinking of fast track corporate insolvency resolution process. So fast track में right now the fast track में days जो है 180 days से घट के 90 days हो जाते हैं, फास्ट ट्रैक हुआ क्या? बट फास्ट ट्रैक के केस होते नहीं है, बिकॉज क्या है उसमें कुछ फास्ट ट्रैक रहता नहीं है, और अभी उन्होंने MSME से एरिया बढ़ा के दे आर सेइंग दोज कंपनीज वेयर द पर्टिकुलर एसेट साइज विल बी देयर, क्योंकि MSME का लिमिट भी बहुत हाई हो गया, अभी तो 5 करोड़ और ये जा रहा है 500 करोड़ तक भी जा रहा है टर्नओवर तक, तो इसके हाँ 250 करोड़ तक, तो उसके लिए अभी क्या है ये आ रहा है कि लिमिट अगर देंगे तो वहां तक भी लोग फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं, ताकि 90 डेज में आपको रेजोल्यूशन आ जाए, बट 180 डेज में भी रेजोल्यूशन आ जाता है तो वो भी एक हाँ, बट वो होता नहीं है ड्यू टू लॉट ऑफ इश्यूज। पर ये पूरा कोड ही वो चैप्टर ही पूरा अमेंड करना ये पड़ेगा। पूरा अमेंड करने के बोल रहे हैं फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को, तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि फास्ट ट्रैक में कुछ हाँ, पूरा फास्ट ट्रैक एक पूरा चैप्टर ही है, जैसे अभी बोलते हैं ना PIR भी चालू करेंगे पर्सनल इंसॉल्वेंसी, ये सॉरी PPIR प्रीपैक इंसॉल्वेंसी के बाद क्या है कि अगर आप प्रीपैक करते हो तो आपको AA में सिर्फ आपको ऑर्डर लेने के लिए जाना है, बाकी और बाकी सब तो पहले से डिसाइड हो जाता है। सो बट इन दैट केस this is basically prepack which they are bringing it is basically a revised OTS type of thing. Right. OTS thing है ये सर, OTS. it is name has been changed, and by this they are taking a concurrence of the A for further litigation को बचाने के लिए, for that only purpose they come out with the prepack. Otherwise it was just like a OTS, data in control, data in control से data in control चला जाएगा, तो फिर बात वहीं का वहीं अटक गया। Now next, So So, PPIRP is not successful, I think. Till no, now till only then, 2 no cases are there. So that And by this the provision, reason, what do you think is the reason for non-success of this Because see, PPIRP? the bank does the forensic audit. Unless the forensic audit is clear, they don't go for settlement amount. It is like that. Yes, that is the main reason. That is the And not main only reason. banks, sir,
PUFE, you will have to do the PUFE also. Even if it is In this amendment, they are removing There is it. an amendment here. They are removing it now. They are moving it, sir. I think. They are removing. yes, they yes, are yes. saying- If that is there, then it is very good. Otherwise, PPIRP will remain unsuccessful because no promoter will allow, no promoter will like to go into PPIRP with the PUFE sword on their head. So they are proposing to remove. They are proposing it in this amendment To remove that it. keeping it aside, you can go with the PIRP. And again, the size will also be decided by the specific notification. These companies can also go for fast track. And they are now making 51%. नहीं नहीं PPIRP का अलग है, PPIRP का अलग है sir. Instead of 66%, now they are making 50%. 51%. 51%. Fast track में they have for reserve plan they are saying 51%. No, 51%. PPIRP अच्छा. Yeah, PIP they are making 58%. फास्ट ट्रैक और PPRP दो अलग नहीं दो अलग चीज सर, दो अलग चैप्टर है. So fast track तो अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है. कुछ हुआ ही नहीं. कुछ हुआ ही नहीं है. Fast track में तो कुछ गए थे. So that's why they are saying They have said ना they will increase. they will increase. By some- Notified. एक PPIP कर रहा था बहुत बड़ा 500 करोड़ का, फोरेंसिक ऑडिट में अटक गया बताओ, क्योंकि बैंक वाले बोले ओके वी डू फोरेंसिक ऑडिट, 6 महीने तक फोरेंसिक ऑडिट हुआ, ये हुआ, उसके बाद में फिर बैंक वाले बोले नो नाउ पीपीआई में बैंक को एक कंसर्न होती है, जैसे पीपीआई क्या होता है, मोरटोरियम आ जाता है. हाँ हाँ, बैंक आर नॉट कंफर्टेबल इन गिविंग मोरटोरियम. बैंक जैसा पूरा सारा एक्शन खत्म हो जाए, हाँ बैंक लूज कंट्रोल, बैंक लूज कंट्रोल, इसलिए सक्सेस हो और उसमें आरपी भी काम नहीं करता है, आरपी इज ओनली बाजू में बैठा रहो बस, इट इज कंपनी रन बाय सम. Correct. मैंने ये नोए का ये वो सब बनाया. they can take to see, Even if they want. but if they want to take to उसमें service, amendment है जो पर्सनल इंसॉल्वेंसी में, Yes, yes. इसमें इसका आ रहेगा ना, क्या इसमें amendment दिया है ना मोरेटोरियम पे, हाँ वो पर्सनल इंश्योरेंस का दिया है. पर्सनल में दिया है. पीपीआई का मोरटोरियम नहीं छोड़ा है. PPIRP में मोटोरियम नहीं चला. प्रपोज नहीं है. मोटोरियम का कोई प्रपोजल नहीं है. Okay, so 66% वाला हो गया. ये स्टेबल एक्सपेंडिंग द प्रीपैक इंश्योरेंस प्रोसेस वही हम लोग भी डिसाइड कर रहे थे. बोल रहा यार बंद कर. It is being considered fit for amended to provide Hello. the prescribed category of CD in addition of MSME. प्रीपैक के लिए उन्होंने कहा कि in addition of MSME को अगर करेंगे. No facilitate quicker and more efficient decision making at this stage. So 51% उसको कर रहे हैं. ये मेन चेंजेस है. और 54C सबसेक्शन 3 क्लॉज C में जो था वो प्रोविजन हटा रहे हैं, जहाँ पे था कि अगर आप कोई ये अपना इन्वेस्टिगेशन के कुछ आइटम्स हैं तो उसको कोने में रखो और PIRP कर सकते हो, प्रीपैक कर सकते हो आप. बेसिकली टू मेक इट सक्सेस प्रीपैक and fast track, they come out with the changes because both are not successful currently. Right. So they are giving like IU. Also, IU is not very successful in India right now. So for that, they bring out the IU ka, they will default you to submit and others. Then improving outcome of the real estate cases. हाँ, real estate cases में यहाँ पे एक issue है, ये है real estate cases में कि you can do project wise. Now project wise में भी उन्होंने कहा कि bad project और good project. जहाँ bad project है उसके लिए CIRP चलती रहेगी, good project company के नाम पे अलग से चलती रहेगी. Now by this company is one and run by the two different person. Who will use what? Who will file the form? Who will report to the ROC or the audits and others? That has not been considered in the paper, not think through. Okay, you get a power, okay, this city will be under Mr. Nitin. Nitin will go, okay, only this project is there. He will go, he have to do a lot of RERA compliance he have to do. RERA compliance he can do because it's a project wise. But what about the company compliances? Company compliances, the other party will say, I am scot free. This is the person, Mr. Nitin is there. So he will file all the information. Right. And Nitin will say, I have only with this project. I don't have entire data of the company. So what I will do? So this type of problems I not think through. Again, this is a good thing that they are saying that it should be project wise. And most of the cases in real estate, project wise, they made the promoters are making
project wise companies also. So एक company एक project, एक company एक project. तो वहां कंपनी वाइज जाना चाहिए. अब एक कंपनी हमने खोली, उसमें 2 प्रोजेक्ट आ गया, ए विंग बी विंग, और ए विंग बी विंग को मैं अलग अलग कैसे करूं? बी विंग में मेरी प्रॉब्लम है, ए विंग तो बन के तैयार है. और फिर दूसरी स्थिति ये भी है, अगर एक गुड प्रोजेक्ट है और दूसरा बैड प्रोजेक्ट है एक ही कंपनी में, हाँ. तो उसके रिवाइव होने के चांसेस ज्यादा है कि चलो इधर से कुछ रेवेन्यू, चलो यहाँ से मिलेगा तो यहाँ से मिल जाएगा. अभी सिर्फ बैड प्रोजेक्ट रहेगा तो उसमें कौन आएगा? क्या आएगा? अच्छा, आपने विंग विंग कर दिया, सपोज को मैं ए विंग बी विंग कर दिया. हाँ, जैसे इनके पास भी है. एक्चुअली ऐसा नहीं, दिस इज अदर वे. एक खराब प्रोजेक्ट होता है, उसके बाहर एक अच्छे प्रोजेक्ट के बाहर मिल जाते हैं, वो खराब प्रोजेक्ट भी साथ में चिपकता है, इसलिए बाहर आता नहीं है. उसका दूसरा वे भी है. करेक्ट. सेग्रीगेट प्रोजेक्ट में उसके जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना चाहिए. चैलेंजेस एड्रेसेस नहीं हुए हैं. आप अभी ये बोल रहे हो कि आप उसमें राइट दे सकते हो, जिसके सपोज को अच्छे प्रोजेक्ट है उसके आप लोगों को ट्रांसफर भी दे सकते हो, एसेट ट्रांसफर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. ये सब करने का पावर दिया है, विच इज अ वेलकम मूव. कि अभी वो कुछ कर ही नहीं पाता था, आज के दिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, आज वो कुछ कर पाएगा. ये सब दे सकता है, अलॉटेड को ट्रांसफर कर सकता है. कि अगर सपोज को 25 प्रोजेक्ट बन के तैयार है, प्रोजेक्ट फ्लैट बन गए, उतने तो पोजीशन दो, उतने तो लोगों को जो पैसे आने वाले हैं वो तो ले लो. वो भी पैसे नहीं आते. Sir, I think this right is still there. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. In case if OC is there. With NCLT approval अभी कर सकते हैं. नहीं, NCLT की अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है. It is a routine business. I have done. It is a routine business. और अगर OC आया हुआ बिल्डिंग का, पैसा आउटस्टैंडिंग था, मैंने उसको ले लिया, उसने मेरे पे केस किया, वो केस विड्रॉ कर लिया, मैंने उसको पोजीशन दे दिया. इट इज एज सिंपल एज दैट. रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी सब भर. हाँ, सब किया मैंने, बिकॉज पैसा आ रहा है, इट इज अ गोइंग कंसर्न, तो आई हैव गिवन इट. नहीं तो क्या, देयर आर लिटिगेशन फाइल्ड अगेंस्ट द बिल्डर. वो बोल रहा है, फिर पार्टी को लगा कि ये इसके अंदर आ गया है, तो सामने से पब्लिक आएगी, सर हम पैसा देते, सेटल करो, अब लो और हमको पोजीशन दो. नहीं तो उनको लगता है कि मेरा पोजीशन कब तक जाएगा, नहीं जाएगा. तो मैंने करीबन 26 फ्लैट का पोजीशन दिया. अच्छा, आउट ऑफ मे बी 50, तो उसमें 25 दे सकते हैं. हाँ, दे दिया मैंने, पोजीशन दे दिया, पैसा आ गया कंपनी में, दैट्स ऑल. और बेस्ट पार्ट है कि मेरा 12 में सेटलमेंट हो गया, विद इन 30 डेज मैंने सब कर दिया. गुड. गुड. कुमार सही है. गुड. नाउ नेक्स्ट इज Point number 9. पॉइंट नंबर 8 हो गया. पॉइंट नंबर 9 इज reimagining the consideration of reserve plan and matter of distribution of the proceed from the same during the CRP. इसमें कुछ देना नहीं है. देना है कि नहीं देना है? हाँ, इसमें सजेशन कुछ है कि ले लें. रियल एस्टेट का देंगे, बताएंगे क्या? I have something to say on real estate. Manoj ji, whether you got any suggestions to be given? For point number 8, improving Yes, outcome of the real estate. सर रियल एस्टेट में इशू ये है कि प्रोजेक्ट वाइज दैट यू आर डिस्कसिंग, सो हाउ टू सेग्रीगेट द COC. Will that COC will be made only for that particular project, or it will be a combined COC for the company? That is a big question. Second thing, there are projects, there are companies where the funds are being diverted. Funds are being diverted from one project to other project, and that result into one project being profitable project, other projects being non-profitable project, loss-making project. So how to resolve that? That is the second issue. It is not being addressed. In that case, the project from where the money is diverted, the home buyers of that project will certainly oppose project-wise. They will say there is no project-wise. You will have to go for the whole company, and you cannot go project-wise because the builder will, the PRAs will take only the profitable one and leave the lost one. Second thing is this this diversion of funds is a big problem from those projects. And third thing is that in a company, if there are 5 projects and there are other financial creditors who are not linked with that particular project, then how you will divide that that liability, that financial creditor or that OC, or there are administrative expenses, administrative outstandings are there, operational creditors. How to divide that? Allocable expenses, how do you will allocate to a particular project? There is no answer to that. So issues are segregation of COC, allocation of common expenses. Yes. Allocation of common outstandings, liabilities, which cannot be decided that it is for which project. You cannot segregate it.
So those liabilities, what will be done? What will happen in those cases? Like debentures, if a company has issued debentures and the funds are being used for company and for any project, they are not dedicated to a particular project. So where that liability will go, debenture? And even in case of security, Even operational creditors, suppliers are there who are supplying the material, though they are supplying to a particular project, that is okay. But if there are certain supplies like you say auditors bill, auditors outstanding, वो किसके लिए है सर? तो प्रोजेक्ट के लिए नहीं है. सर इवन चार्ज भी क्रिएट किया होगा वो भी मेरा असेट था सिर्फ बैंक बैलेंस 30,000 रुपए अगर पूरे और कुछ नहीं था सब प्रोजेक्ट का एक साथ में किए हैं. मनोज जी हो गया. हाँ सर, अभी भी मैंने कहा लिक्विडेशन में करूंगा कि 30 आवाज साफ नहीं आ रही है सर. currently this is regulation. Yes. And then if one process is failed, you can do segregated settlement of the project. Yeah, so directly. Same thing here. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि तो कंपलसरी नहीं आपको जाना, सीओसी एग्री करता है और मनोज जी उसमें अलग-अलग प्रोजेक्ट आपको रेशियो है, बट एक कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न जाएगी ही जाएगी. मैंने दो केस You need to have a buyer. नो, गोइंग कंसर्न जाएगी तो फिर वो प्रोजेक्ट वाइज सक्सेस नहीं होएगा सर. हाँ, challenges तो है सर, yes, आपके point तो नहीं अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ. Like I give the example of HDIL. HDIL में सर टोटल 10 वर्टिकल्स थे. आउट ऑफ 10 वर्टिकल्स 7 में रिजोल्यूशन आया है, 3 में नहीं आया है. तो 3 जो 6 में रिजोल्यूशन आया है, 4 में नहीं आया है. तो 4 के लिए हमने लिक्विडेशन फाइल किया है. नहीं तो 3 केस के क्या होगा? वो सीडी को लेके जाओगे या कैसे लेके जाओगे? हाँ, 4 केस में जो 6 प्रोजेक्ट आए हैं उन 6 का अलग से एक एक कंपनी बन जाएगी, डीमर्जर हो जाएगा, वो सारे प्रोजेक्ट आउट हो जाएंगे, बैलेंस जो बचेगा अच्छा, कंपनी में आप यानी liquidation. प्लान के थ्रू आप जो है डिसोल्यूशन बनाओगे और डिमर्ज करके एक नई कंपनी बनाओगे, उसके बाद उस कंपनी को लेके जाओगे लिक्विडेशन में. नहीं सर, 6 के 6 जो प्रोजेक्ट जो सेल हो गए हैं रिजोल्यूशन में, दैट विल गो एज पर नहीं, सीडी एक ही है. नहीं एक मिनट मनोज जी. अभी जेपी में आप देखोगे 4 अलग, एक रोड एस्टेट, एक इलेक्ट्रिसिटी एसेट, एक रियल एस्टेट एसेट है और एक फाइनेंस एसेट. That are interdependent entities. That are not real estate. वो करेक्ट. Interdependent entities. तो 4 है, different entities है, different businesses है. ठीक है. उसके लिए वो है proposal है. रियल एस्टेट ना. हाँ, आप जो बोल रहे हो उसके लिए प्रपोज है वो. उसके लिए proposal. We are talking only on project wise real. सिंगल सीडी इज देयर, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ये बात चल रही Only है. a project of real estate. करेक्ट. व्हाट आई एम सेइंग कि एक प्रोजेक्ट में अगर 10 विंग है, 8 विंग के लिए कोई लेने के लिए तैयार है, 3 विंग नहीं लेने के लिए तैयार, तो क्या? तो उन्होंने बताया 3 विंग के लिए एक अलग कंपनी बनाएंगे विद एनसीएलटी ऑर्डर और उसको लेके जाएंगे लिक्विडेशन में. ये 8 कंपनी, ये नया बंदा वो नई सीडी में चला जाएगा. नहीं सर, कंपनी रिजॉल्व भी होना. तो जितनी कंपनियां, हेलो, हाँ, कंपनी एक ही है. एक ही कंपनी में 10 प्रोजेक्ट है, 10 में से 6 प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के विंग लिए है. 10 प्रोजेक्ट की बात कर रहा प्रोजेक्ट भी ले लो हूँ. ना. हाँ चलो प्रोजेक्ट ही ले लो. हाँ 10 प्रोजेक्ट है, 6 के लिए रिजोल्यूशन प्लान आया. हाँ, तो 6 के अलग अलग 6 लोग है खरीदने वाले, उन सब ने डिमर्जर करके आउट कर लिया वो 6 का 6. ओके. बचे 4 जो है वो कंपनी में बचे सीडी में. दैट सीडी शुड गो इनटू लिक्विडेशन. ओके, यू वांट टू से कि वो जो प्रोजेक्ट है आपने वो उसका डिमर्जर कर दिया, जो अच्छे प्रोजेक्ट है उसको कंपनी का नाम नहीं मिलेगा. हाँ, और मैं कह रहा हूँ अगर उसको वो नाम भी चाहिए उस 6 को, 4 को नाम कैसे नहीं चाहिए. बेचोगे आप? दैट विल गो विद द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी ना. आइदर यू टेक द कंपनी देन. कॉमन पूल से एसेट नहीं, सामने वाला जो मैं खरीदना चाह रहा है 6 प्रोजेक्ट, वो विद नेम खरीदना चाह रहा है. वो 4 प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहता नाम के साथ. नहीं, नाम अगर अलग से बेचना चाहते हो तो बेच दो. अगर इफ यू हैव सम रजिस्टर्ड कुछ है तो उसका वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, देन यू कैन सेल इट ना. अदरवाइज अपने पास कौन से ब्रांड वैल्यू वाले आते हैं? सभी तो बिना ब्रांड वाले ही है. ओके, चलो ठीक है. तो माय सजेशन इज दैट उसमें एक जो लिखा हुआ है कि जो गोइंग कंसर्न होना ही चाहिए वन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान, वो कंपलसरी करेंगे तो रिजोल्यूशन आएगा नहीं. प्रोजेक्ट वाइज विल फेल. These are the issues there. करेक्ट. यू आर सेइंग करेक्ट. सो वो समझ में आ गया. थैंक यू. कॉमन पूल पे जाएगा. चलो वो सही है. This can be जिनका already करना है decided by CA. सेपरेशन ऑफ प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स. और इनकम टैक्स में डीमर्जर के लिए है कि कैसे आपको एलोकेशन करना है लायबिलिटीज. अगर वो सेम डिवीजन है तो इनकम टैक्स में है ना सेक्शन. अब हाउ आर यू गोइंग टू एलोकेट योर लायबिलिटीज? अभी एक
डीमर्ज करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स 9 नंबर, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड में क्या है कि जितना लिक्विडेशन वैल्यू है वहां तक जाएगा एफसी को, और उसके बाद जो है वो सब में रेटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितने भी केटर्स बचे हैं उसमें रेटिवली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो प्रोसीडिंग्स है 9 नंबर 9.6 to reduce the dispute. What they are saying is till the liquidation value the FC other secured creditors will get the share, and for others it will be ratably distributed based on the amount of claim admitted. अभी ये कह रहे हैं तो लिक्विडेशन वैल्यू अगर सपोज को 10 रुपए की प्रोजेक्ट है, उसमें आपका फेयर वैल्यू 7 रुपए है, लिक्विडेशन वैल्यू 5 रुपीज है, तो 5 रुपीज तक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स लेके जाएगा। ऊपर का अगर आपको 8 रुपीज मिला है तो 3 रुपए जो है वो बाकी जितने भी क्रेडिटर्स हैं उसमें बढ़ जाएगा बराबर बराबर रेटिवली। सो ये पीएफ का ड्यूज वगैरह जो है उस सबको बराबर खत्म करने के लिए किया गया। लेकिन अभी क्या है, वो पीएफ का ड्यूज तो वैसे भी ऊपर है उसके मिलने से पहले, वो आता है लिक्विडेशन में, तो वो चाहेगा हमेशा ही कि लिक्विडेशन में कंपनी जाए ताकि उसको क्लेम फटाफट मिल जाए। सीआरपी में तो वो जाता नहीं है, तो ऐसे केस में उसको कैसे करे? ये ऑपरेशन क्रेडिटर को जैसे बड़े-बड़े 20-20 करोड़ रुपए क्लेम होते हैं उसको 1 लाख रुपए जो दे देते हैं, हाँ, नाउ दे विल गेट सम मनी, दे विल गेट सम मनी। दिस व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अमेंडमेंट, बट इसमें क्वेश्चन वही है कि व्हाई लिक्विडेशन वैल्यू व्हाई नॉट फेयर? Sir, as per me, we are going to create more litigation because of this particular clause. यस यस, इसमें आप लोगों का सजेशन खत्म हो गया तो मैं बोलूं सर? हाँ बोलो सर। यस सर प्लीज। तो इसमें एक तो ये होएगा, द रिजल्ट ऑफ दिस विल बी कि बैंकर्स जो है नाउ दे विल स्टार्ट फाइटिंग फॉर लिक्विडेशन वैल्यू, दैट लिक्विडेशन वैल्यू शुड बी ऑन हायर साइड सो दैट दे कैन गेट मोर। अदरवाइज वो दूसरा जो रीजन होएगा कि दे विल नेवर फाइट फॉर हायर प्राइस विथ पीआरए, क्योंकि उनको मालूम है कि लिक्विडेशन वैल्यू मिल गया तो उस पे बेचो और खत्म करो, उससे ज्यादा के लिए दे विल नेवर फाइट। उनके पास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नहीं, अगर लिक्विडेशन वैल्यू से ज्यादा मिलता है सर, जिन केसेस में रियलाइजेबल वैल्यू मिलती है या उससे कम मिलता है मगर लिक्विडेशन से ज्यादा मिलती है, तो वो वहां पर फाइट करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको सिर्फ मिलेगा उतना ही जितना लिक्विडेशन वैल्यू है, तो वाई टू फाइट फॉर द मोर प्राइस? दैट इज वन पॉइंट। सेकंड इज दे विल फाइट फॉर लिक्विडेशन वैल्यू। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट विल कम, अभी तक वो लोग लिक्विडेशन वैल्यू को वैल्यू नहीं देते थे, उतना कोई खास नहीं था, चलो उससे ज्यादा में बिक रहा है, कम में बिक रहा है। नाउ सिंस देयर funds are related to liquidation value, they will fight that liquidation value should be on higher side, so that will create more litigation. सर वैल्यूएशन वैल्यूअर के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर आने वाला है। We don't disclose liquidation value till the plan receives the plan. Yeah, one more thing sir, recent no sir, if you see currently the form G which has come, you have to give in IM also the estimated value. Once you give the estimated value, then it is a public domain. That point will cover. Estimate you have to. So on what basis you will get estimate? This point will come. 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता आप 50% ऊपर नीचे दो। आगे है वो point. I am related valuation estimate. But sir, valuation has to be completed within 95 days to issue IM, because IM has to consider this estimated value, so valuation has to be completed anyhow within 95 days. Okay. Doesn't say that it's valuation value. See, आपका basis होना चाहिए आईपी के बाद, आरपी के बाद में कि क्या basis पे वो estimate value डाल रहा है, क्या estimate डालेगा? valuation complete होना जरूरी नहीं है, मतलब valuation complete होना जरूरी नहीं है। नहीं, अगर वैल्यूएशन नहीं कंप्लीट हुआ तो बोलता है ना, एक तो बोलता है ना 30 डेज में। नहीं, अभी आपको एक बताता हूँ, वैल्यूएशन रूल्स बोलता है क्या, 30 डेज में आप जब अपॉइंट करते हो 40 डेज तक आपको अपॉइंट करता है, 47 डेज तक। और एक दूसरा लॉ बोलता है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट में आप जनरली 30 डेज का ही टाइम देते हो कि द वैल्यूअर शुड सबमिट द रिपोर्ट विद इन 30 डेज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 47 + 30 तो 77 ही होता है, उसको वो 97 बोल रहा है, 20 दिन और सही, तो 97। अभी 97 डेज तक कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता है सर।
आप बोलते हो कि 7 दिन आया है, उसके 4 दिन पहले वैल्यूएशन आया। हाँ, अभी जिसमें कि वैल्यूअर को लिख दिया ऑफिशियली कि भैया तू किसी नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, मैं दूसरा सब 25 बार बोल दिया नहीं होता है तो उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई बोलता है 7 डेज के अंदर ना तुमको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो यू शुड फाइल 19(2). 7 दिन में वो बोलता है अच्छा हम तो अभी कंपनी से बाहर चले गए, हमको तो कुछ डेटा है ही नहीं, हम बना रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं। अभी उस पर भी कैसा केस लॉ चल रहे हैं कि 19(2) को इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन आपके पास आ भी गई पूरी। वो एक बिल्डर के गए थे, उसने पूरे रूम भर के मेरे को पहुंचा दिया, बोले ये पेपर्स हैं, ये ले लो। अरे रूम का क्या करूं, वो सॉफ्ट कॉपी दे, नहीं मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया तो अभी डेटा नहीं है, आपके पास सारे हार्ड कॉपी है, इसको हम करवा रहे हैं, करवाने में टाइम लगेगा। नाउ व्हाट यू विल डू विद दिस? और बड़े बड़े एग्रीमेंट वगैरह कॉपी पकड़ाता है, जो मेन डेटा है वो तो देता ही नहीं है। एंड वी हैव गिवन टू बॉक्स ऑफ ये, जब तक मैं 19(2) डालते तब तक मैं वो एनसीएलटी में चला गया, वहां से वो स्टे लेके आ जाएगा, बट योर टाइमलाइन इज टिकिंग कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। सो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कौन देखेगा और आप किससे हेल्प मांगोगे? हर चीज के लिए डायरेक्शन के लिए आप ए के पास जाओ, और डायरेक्शन आप जिस दिन मांगोगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि 7 दिन में डायरेक्शन मिल जाएगा तब तो कुछ वैल्यू, उसका डायरेक्शन आते आते भी आपको 1 महीना लगेगा। और ए ने अगर फ्रीवेस बोल दिया तो आप 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से भरते रहो, 30 लाख रुपए निकल जाएंगे आपके 1 महीने के। चलो नेक्स्ट। सो वाटरफॉल मैकेनिज्म का हो गया। सीआरपी में लिक्विडेशन वैल्यू तो आप बोल रहे हैं नहीं लाना चाहिए। सीआरपी में लिक्विडेशन वैल्यू के ऊपर अगर बोल रहे हैं तो उसमें 2-3 इशू जो मनोज जी ने बताया कि फाइट ही नहीं करेगा कोई, पीआरए को बोलेगा नहीं, और तब आप बोलते हो कि बेस्ट जजमेंट लगाए, और बेस्ट जजमेंट सीओसी मेंबर में अभी तक हम लोग सीओसी मेंबर किसको बना रहे हैं? सिर्फ एफसी को, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पास एक्सपर्टाइज है, ये 50 तरह के एक्सपर्टेंस है। उसका थॉट क्या है कि मेरे बैंक का पैसा मिले, मोस्टली ही इज लुकिंग एट द रिकवरी नॉट देन कि वो सरवाइव कर रहा है, रिवाइव कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे वो सिर्फ अपना वैल्यू कहां तक स्टिक करके रखेगा? लिक्विडेशन वैल्यू तक, कि यही पैसा मुझे मिलने वाला है, बाकी तो सब में बराबर बढ़ जाएगा, तो मेरे पास आएगा क्या? तो वहां पे चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं कि वो लिक्विडेशन वैल्यू के लिए फिर वो बोलेगा कि वैसे वैल्यूअर को अपॉइंट करो जो लिक्विडेशन वैल्यू बढ़ा के देता है। फिर वो अगर लिक्विडेशन वैल्यू बढ़ा के देता है तो फिर ये सवाल पूछेगा कि ये वैल्यू पे जो है उससे नीचे आप बेच नहीं सकते। 1-2 केस लो आए हैं कि जो लिक्विडेशन वैल्यू के नीचे बेच सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा वो निकालो, उसके बेसिस पे अगर आप लिक्विडेशन वैल्यू से नीचे बेचते हो तो आईबीबी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे उस समय कि लिक्विडेशन वैल्यू भी नहीं लेके आ पाए इन प्लान। ठीक है, there are cases where you can go below liquidation value also, but एक क्वेश्चन तो आता है ना कि लिक्विडेशन वैल्यू से भी नीचे नहीं बेच पा रहे हो, तो वहां पे क्वेश्चन आएगा प्रेशर। सर यू आर राइट सर, इसमें यही होएगा व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आई डोंट नो वेदर व्हाट विल हैपन, बट कि लिक्विडेशन valuation will be on higher side, liquidation valuation will also be on higher side, and most of the deals will be on lower side, less than liquidation value. Less than liquidation value. Liquidation value would be like fair value. So currently there is an incentive More or less same. More or less same. Currently financial data incentive. Now the game will change. Liquidation value जो है ना valuation will that will be challenged. Challenged by the value will be the highest value. Currently there is incentive for financial creditor to resolve this case. उसको liquidation value से ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए वो effort लगाता है कि resolve हो case. If he is anyway going to get liquidation value, why would he put efforts to realize the money? उसको जितना मिलना है उतना तो liquidation में मिल जाएगा. 52 So then the incentive to go for resolution going concern will reduce. Will reduce. Other stakeholders will suffer. Other stakeholders will. Other stakeholder को तो वैसे भी सफर करना है. This amendment is to get other stakeholders get benefit. But उल्टा हो जाएगा. या उल्टा हो जाएगा. So इसको अगर fair value कर दें, so then there is a protection for financial creditor also, and then there is an incentive because वो उसको इतना gap liquidation value से fair value के बीच का जो gap है वो financial creditor को ज्यादा मिलेगा. Otherwise if you go for liquidation, correct, he is in beneficial position. Sir, day by day liquidation. Other stakeholder जैसे अपना operation creditor को भी 1 लाख रुपए देते हैं, 20 करोड़ का दे रहे हैं, 200 करोड़ का दे रहे हैं, उसको just देखिए 1 लाख कम से कम दे दिया, 2 लाख दे दिया, 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख में आपकी केस में सर आपत्ति होती है, 2 लाख रुपए दे देते हो. तो इसमें चांसेस ये हैं कि थोड़े ज्यादा एक की जगह 2-3 लाख मिलेगा बस. तो उसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सर अगर आप लिक्विडेशन वैल्यू के हिसाब से जाओगे तब तो वो बोलेगा लिक्विडेशन में लेके जाओ ना, और मैं लिक्विडेशन में ले जाके भी आपको नहीं दूंगा एसेट, एसेट मैं खुद सेल करूंगा.
तो आपको सिर्फ मेरे को पगार देनी पड़ेगी आईपी को, बाकी अदरवाइज तो सारे राइट्स मेरे पास रहेंगे। गोइंग कंसर्न में ले जाके मेरे को क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो। एक तो पहले दिन से ही आप आरपी को बैठा दियो जो सारा काम करेगा, तो थिंकिंग वहां Sir, पे this will certainly reduce the chances of resolution. This is going to will- reduce the chances of resolution, sir. Yes, this is reducing the chances of this resolution rather than going for a liquidation. But the best part of this amendment is this is doing a fairer and more equitable for other Yes, stakeholders. yes. Because currently One voting thing. are done by financial creditors, and stake of other creditors like operational creditors are also stake or one stake. So they said you keep your money and then you distribute equal amount between other as equal. So welcome amendment, but then instead of liquidation value, this should be fair value. Is what my suggestion is. But अगर उसको comment correct dissenting करने के लिए इसको इसमें fair value dissenting का का क्या होगा? इसका Dissenting creditor को what will be the position in that case? same I think. Dissenting creditor वही वो तो liquidation liquidation Again वही same मतलब dissenting का मतलब ही नहीं। Okay. अगर liquidation से नीचे में जा रहा है तो उसको फायदा है। फायदा है। Dissenting वाले। Dissenting creditor का मतलब ही Third, अभी कैसे हो रहा है? 100 रुपए का अपना आ रहा है। कौन सा पॉइंट है तुम्हारा भी? 9.8. 9.8? 100 रुपीस also बिके। Dissenting creditor benefit. ओके नाउ अगर कोई एक तो क्या 9.8 मॉनिटरिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान अभी तक था नहीं, वो आरए ही अपने प्लान में देता था कि मॉनिटरिंग के लिए हम इस मॉनिटरिंग कमेटी को बनाएंगे। नाउ सीओसी में प्रोवाइड वो सब रहेगा, पीछे का रहेगा, देखो एक पेज रहेगा। हो गया पीछे का हो गया सेपरेशन ऑफ रिजर्व प्लान हो गया 9.6 भी हो गया ना। हो गया नहीं 4B के ये सेपरेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीड्स ये तो पैरेलली चलेगा। करेक्ट। वी विल डिसाइड रिजोल्यूशन प्लान, आप रिजोल्यूशन करते रहो, डिस्ट्रीब्यूशन में फाइट चल रहा है तो वी विल डिसाइड। दोनों अलग अलग। हाँ अभी हाँ एक और चीज, दो अलग अलग चीज आ गई। एक तो आप सेल करने का, एक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो सेल करने का अगर हो गया तो सेल कर दो 9.5 में रेजोल्यूशन। therefore कंपनी विल गो इनटू रिजोल्यूशन बट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिसाइडेड। अभी क्या हो रहा है कि रेजोल्यूशन हो गया, अभी फाइट होता है कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो इसके लिए हम नहीं ये नहीं होगा, तो सामने वाला पीआरए को मिलेगा ही नहीं कंपनी चलाने को। आप पीआरए को दे दो, कंपनी चलाता रहेगा, वो उधर वो गोइंग कंसर्न में चलता रहेगा। इधर जो पैसा है वो एक जगह उठा के रखो, फिर वो डिसाइड करने के लिए एक कंपनी 6 महीने में मिल जाएगा। अभी तुम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइट करते रहो, फाइट करते रहो। 2-2 साल कंपनी फाइट करते ये अभी फाइट कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि नहीं मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर का भी एक केस था जिसमें वो लड़ता ही रहा था उसके ऐसा कर, तो उसी में वो लड़ रहा था लड़ने के चक्कर में वो जो है लटक गया उसका केस। अभी लिक्विडेशन वैल्यू को सजेशन है क्या फिर? बेसिकली ये अच्छा रहेगा। ये अच्छा है। Suggestion is we should have fair value wise. पर वैल्यू रिप्लेस होना चाहिए। तो उसके पीछे कारण वही बताया, this will have incentive for resolution for the financial वो रिजोल्यूशन प्लान भी नहीं आएगा। 9.6 बट प्लान विल ये तो लोगों को फायदा ही है, उसको ना लिक्विडेशन में लेके जाएगा। वो लिक्विडेशन में लेके जाएगा, वो खुद बेचेगा, मतलब ऑटोमेटिक मैं खुद बेचूं। लिक्विडेटर का जरूरत क्या है? लिक्विडेटर को सिर्फ दिखाने के लिए रखो। ओके नाउ टू मिटिगेट सच डिले, हाँ ये चैलेंज मैकेनिज्म 9.7। ओके अभी क्या मैंडेटेड कर रहा है? अभी क्या था कि अगर 2 आदमी ने प्लान दिया और जिसका वोटिंग होगा तो अभी उसमें वोटिंग करके हम लोग कर देते थे, इसको देते थे। अभी क्या करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी चैलेंज मैकेनिज्म भी चालू करना है। तुमने 10 बोला, इसने क्या बोला, चलो तुम बढ़ाने वाले 10 वाले को, फिर वो बोलेगा 12 बोलेगा, तो फिर यानी इस तरह चैलेंज मैकेनिज्म करना है। चैलेंज मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, अब आपको भी पता चल जाएगा सामने वाले ने क्या कोट किया और आप इन्होंने भी पता चल जाएगा क्या कोट किया, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। ऑफिशियली तो चैलेंज अभी भी चल रहा है। अभी वो ये सीओसी करती है 1 to 1, अभी वो क्या ओपन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ओपन हो गया एक तरह से, ऐसा चलेगा। आदमी बैठे हैं, बोल भैया हाँ तू बोल क्या है। थ्रू एप्रोप्रिएटली डिजाइन। तो अभी जो एक प्रोविजन था कि वो सेपरेटली मीटिंग करेगा सारे पीआरए के साथ, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। अभी ओपन हो गया, आज ओपन हो गया, तो आज अगर मेरे पास 4 पीआरए आए हैं तो चारों को एक साथ ही बैठा दो, भैया तू क्या ऑफर कर रहा है, मैं खोल रहा हूँ, खोल के देख के भी क्या करूंगा मैं, तुम चारों को तो बैठ के आपस में ही डिसाइड करना है, मुझे तो कुछ डिसाइड करना ही नहीं है। बोलने में ये हो सकता है इसने ये कोड किया, ये कोड किया, नहीं वो पहले क्या था कि हमको वो बट ये सबसे हाईएस्ट है। अब हाँ। बोलो भाई इसको कौन मैच कर रहे हो, 3 नंबर,
ऐसा ऐसा मैच करना। तो अब वो हिडन रखने नहीं, अभी क्या सर, अलग अलग होता है 15 लाख के ऊपर ही सर सर, अभी अलग अलग होता है, अभी एक ही अलग अलग होता है। अभी अलग अलग होता है। ऐसे भी करते हैं हम लोग। अभी मैंडेट हो गया, अभी कंपलसरी करना है। चैलेंज में नहीं, नॉर्मल चैलेंज में सीआरपी में भी ना, सीआरपी भी करते हैं। No, see, plan is given once. Once finance come. हाँ, वो डिसाइड करते थे पहले, अलग अलग मिलके करते थे, अब क्या सबको एक साथ बैठा लो। तो सीओसी बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारा इतना है, आप कितना बढ़ा रहे हो, तब बोलते हैं इतना। फिर वो बोलते थे, एक केस में मैंने 12 करोड़ किया था, एंड में वही 22 करोड़ में गया। 22 करोड़ में। सही और 12 का मैंने 15 कर दिया कि चलो 15, 50% इंक्रीज हो गया। 22 में गया। और उसमें बैंक को सरप्लस पैसा आया, सारा क्रेडिटर जीरो, फिर भी 2 करोड़ बच गया। शेयर होल्डर का जाएगा। है ना, सही ये प्रोसेस है उसका, सही है। भिवंडी का। अरे सही सर सही है, ऐसा मेरा भी एक केस हुआ है, उसमें हाँ। पैसा शेयर होल्डर को जा रहा है। हाँ, शेयर होल्डर को जा रहा वही है, तो। गुड, यस यस वेरी यस। गुड, सही है। तो ये आपका वो- रियल एस्टेट है क्या? नहीं, मेरा रबर कंपनी है। रबर? हाँ, रबर प्रोडक्ट। हाँ, तो वो वैल्यू सही है। है बोलते हैं, क्योंकि बैंक का लायबिलिटी कम है और असेट वैल्यू ज्यादा है, तो होएगा ऐसा हाँ। केस में। तो मेरा तो 12 करोड़ का तो वैल्यूएशन था, हमने 15 दिया, पब्लिक 18 दे दी, 20 दे दी, एंड में 22 पे चले गया। शेयर होल्डर्स तक पैसा गया है बहुत। हाँ, वेरी गुड। बहुत बड़ी चीज है। हाँ, चलो नेक्स्ट, चलो एक है मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। मॉनिटरिंग के लिए क्या है, सीओसी में प्रोवाइड फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ मॉनिटरिंग कमिटी। जो पहले आरए खुद ब खुद देता था, अब वो उसको पावर दिया है कि सीओसी को कि दे विल मॉनिटरिंग कमिटी नाउ। Suggestion is there, for constitution of this COC for implementation managing committee, this monitoring committee, there should be one independent evaluation professional in this committee. हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन है कि मॉनिटरिंग कमिटी में आरपी तो रह ही नहीं सकता। Independent resolution. अभी क्या है कि once you have attached with some company in the case, you 5 years तक तुम उसके साथ कोई धंधा नहीं कर सकते। Independent person appoint. IBBI के हिसाब से। No, Rakesh भाई. तो मॉनिटरिंग, हाँ Different. नहीं, मैं समझा आपकी बात को। मैं अभी जो बता रहा हूँ, IBBI के रूल के हिसाब से once you have resolved the cases, you cannot be continue with the I am not the same person. Other person will be inducted there. that's okay, but you cannot be inducted as a monitoring committee. Independent. What It's is okay, give other chance, give other people Yeah. chance. Other people को chance दो, ऐसा। Constitution of this monitoring committee, that independent RP should be Advice one होना of the चाहिए कि person. one IP should be there. It should be IP, Yeah, correct, independent IP. independent IP। लिख दो exception दे हाँ, देता है। exception दे दो। A provide opportunity to cure the defects of revision plan। हाँ, ठीक है। राइट नाउ अगर कोई एरर रह गई रेशन प्लान में, तो उसको रिजेक्ट करना था या एक्सेप्ट करना था। अभी क्या है, ए को ये पावर दिया कि वो उसको रिमांड बैक टू द सीओसी कर सकता है कि डिफीट को सही करने के लिए। जैसे मेरे प्लान में अभी हमको एक आइडिया है जिसमें वो सीओसी और या रेशन एप्लीकेंट दोनों ने कहा कि वो पफ एप्लीकेशन का क्या होएगा। सीओसी क्या बोलता है, ये सारा पैसा तो मेरा ही है, और रेशन एप्लीकेंट क्या बोलता है, वो तो पैसा मेरा है, मैं तो इसमें फाइट करूंगा, मैं क्यों उसके लिए फिर लड़ूं। Point is for curable defects. क्यूरेबल डिफेक्ट, तो क्यूरेबल तो है ही ना, तो डिसाइड करो तुम लोग, जो खर्चा करेगा वो लेगा पैसा। दोनों ही खर्चा नहीं करना चाहते तो करेगा कौन। Liquidation में एटलीस्ट नहीं जाएगा, वो बचेगा वो केस उधर। नहीं, कंपनी का लिक्विडेशन नहीं, प्लान में आया है, बट प्लान में किसी ने ये नहीं कहा कि वो केस चल रहे हैं उसके पैसे कौन देगा, या उसके रिजॉल्व होगा तो उसका जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, जो खर्चा करेगा उसको मिलेगा। करेक्ट। तो ये कहीं नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। नहीं, खर्चा कौन करेगा? अभी केस कर रहा हूँ, मैं डिसोल्यूशन कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरा 60 का एप्लीकेशन फाइल किया है, करेक्ट, तो मैंने कहा कि खर्चा कौन करेगा, उसी को बेनिफिट जाएगा, तो दैट आई पुट इन द डिसोल्यूशन एप्लीकेशन। अच्छा एप्लीकेशन में डाल दिया। 66 में जो खर्चा करेगा उसी को बेनिफिट जाएगा। अगर जो करेगा और फॉलोअप जो है। हाँ, वही तो जो फॉलोअप करेगा, खर्चा करेगा। फॉलोअप करो, खर्चा में नहीं, मैं तो हुई हूँ ना, आफ्टर डिसोल्यूशन आई एम नॉट देयर। तो जो खर्चा करेगा देगा, एफसी वाला मैं खर्चा करूंगा, तो तू कर ले और तू ही पैसा ले लेना, आता है। चलो जल्दी खत्म करो। That's all, और क्या, आई पुट इन दैट माय एप्लीकेशन। आगे करो आप। चलो ये नेक्स्ट इसमें राकेश भाई आपको देना ही है। 11 पेज हो गए। रीस्टेटिंग कर लेता हूँ मैं। हाँ, रीस्टेटिंग सीआरपी, हाँ रीस्टेट कर सकते हैं। नहीं, इसमें लेता हूँ मैं अभी आगे। हाँ बोलो।
नहीं, इसके पहले का जो पॉइंट है आपका durable- कर दिया सीआरपी से डायरेक्ट ड्यूरेबल जो लिखा है Resolution direct. हाँ डायरेक्ट कर दिया लिक्विडेशन किया ही नहीं। तो उसको आइडिया मिला होगा, ये भी कर सकते हैं। मैंने एक कर दिया और एक ऑलरेडी मेरा अभी तो होने वाला है, एक का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट 11 ड्यूरेबल डिफेक्ट्स में जो पहले के एप्लीकेशन चल रहे हैं उसका क्या है? बता ना, अवॉइडेबल है जो चल रहा है। उन्होंने बता ना, जो खर्चा करेगा वो लेगा, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट लॉसेस 1100 करोड़ के हैं और 1100 करोड़ का पैसा देना है। No, thank you, Rakesh bhai. चलो Now we Next. will proceed with next point. रीस्टेटिंग Reinstating of CRP. Normally, the liquidation process starts after the commencement of the code commence after the CRP. Point number 10. पेज नंबर 11 So there is a revival process because main motive of this IBC is to give the maximum value to the assets of the CD. So if here are the two scenarios are mentioned, one is a liquidation case, one is a CRP case. In liquidation case also, the liquidator is running that business for some extent, CD's business. That point of view also, you cannot force CD for liquidation. The suggestion here is the code enable restatement of CRP during liquidation process where liquidator continues to carry on CD's business and it is possible to revive the CD as determined by the COC. So COC will determine here and at least we can save the CD. Instead of liquidation, we can save the CD. ये एक केस में हुआ था जब लिक्विडेशन पीरियड में चला गया कंपनी, उस पीरियड में कंपनी में कुछ ऐसे विंडफॉल गेन्स आ गए जिसमें वो कंपनी रिवाइव हो सकती थी, सीडी प्रोसेस में फिर से जा सकती थी, लेकिन एक बार लिक्विडेशन ऑर्डर पास हुआ तो आप वापस सीआरपी में नहीं जा सकते, ऐसा प्रोविजन था। अभी इस प्रोविजन से ये किया कि अगर ए के पास एप्लीकेशन जाएगी तो फिर से उसका सीआरपी स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि सीआरपी चलती रहे बार बार। वो अभी भी हो रहा था। हाँ, वो एक केस में हुआ है उनके साथ, तो इसके लिए वही अधिकारी में, अब उसी के कारण वो चालू हो गया। ये उसी के लिए है, तुम्हारे केस जो है ना उसी के चक्कर में आया है वो, कि लिक्विडेशन पीरियड के बाद फिर से सीओसी में चला गया। पैंडेमिक पीरियड में वो कम रहेगा, कुछ बिजनेस नहीं रहेगा, बाद में ऑल ऑफ सडन वो सडन बढ़ गया बिजनेस बढ़ गया होगा उसमें। नहीं, एक्चुअली क्या है, यू हैव डन, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, यू आर डूइंग द, एक बिजनेस कंपनी चल रही थी, उसका एक कंपटीटर था चाइना वाला, अभी सरकार ने प्रोविजन लाया, वो चाइनीज कंपनी को बाहर कर दिया, वो चाइनीज कंपनी इंडिया छोड़ के गई, ये कंपनी जो लॉस में चल रही थी वो अचानक से इकलौती हो गई, अब उसका बिजनेस रिवाइवल होने के मूड में आ गया, तो क्या हुआ, वो वापस सीआरपी में जा सकती है। राइट, चेंजेस हुए। चलो नेक्स्ट। This is subject to liquidator continues carry on the city's business. Here one more para is added. Please refer 25.1, page number 19. हाँ सर, बोलो ना। The whole swiftness and efficiency is conducted by the liquidator. COC. Yeah. Now COC will supervise. आप जैसा कहोगे फिर यहाँ से मैं उधर आ जाऊंगा और क्या करूंगा। चलो page number 19. हाँ हूँ मैं तो। हाँ, वो तो COC, अभी COC को पावर दे देंगे। So it is proposed the COC should supervise and support the liquidator function. Previously it was not there. Now it is proposed. पानी की बोतल नहीं है सर, बाहर लगी तो उधर है। And according अरे यहीं पे है, कोई नहीं रखी है फालतू ही। also there in second scenario where स्पीकर की ले लो यार। चलो नेक्स्ट क्या चीज कंटिन्यू करें ना। सेकंड सिनेरियो is CRP case. First is liquidation, second is CRP. CRP में where the approved resolution plan is not implemented or plan gets rejected under section 33(1)(b). 33(1)(b) is for rejects the resolution plan under section 31 for non-compliance. That is here the COC believes that CRP may be instated, then AA can reinstate. So here's the second chance is given in CRP case also to save CD. Now, only in case of Both cases, in liquidation case also and in CRP also.
but the power lies with the AA, adjudicating authority. It shall be the discretion. Non-compliance of mandatory payment. Yeah, both conditions. Either the plan gets rejected or there is a non-compliance under section 33(1)(b). Then this AA will decide whether to reinstate CRP, pass liquidation, or to continue with the liquidation process. Next point is point number 11, intermingling the assets of CD and the guarantors. अभी वो क्या है कि सीडी को भी साथ लेके चल The जाओ. common problem, the land is belongs to the guarantor and the plant and machinery belongs to the CD. So without this both consent of the guarantor, you cannot dispose of these assets. Right. So this is the common problem faced by resolution professionals. No, the land is also mortgaged to bank. Why can't I dispose? नहीं बट वो लेकिन आपने उसको सीडी में लेके गए. If in this case, वो कंपनी के नाम पे नहीं है, कंपनी के नाम पे नहीं लेंगे. हाँ तो वो तो फिर दोनों को लेके जाओ. सीडी में मैंने बैंक बेचता है ना अंडर सर्विस की वही हम इसको ये दो पार्ट में है, वो उसमें कवर होगा, सरफेस भी कवर होगा. In such cases, the restricting the resolution process of CD to its assets resulting in insufficient outcome. जो ऐसा कोई लैंड एक के नाम पे और एसेट दूसरे के नाम पे है तो उसको रिजोल्यूशन प्लान देने में भी तकलीफ है और कोई उसमें सक्सेसफुल वो आउटकम जो आना चाहिए वो नहीं आएगा. So therefore, उसके लिए सजेशन भी है. It is being considered that mechanism should be provided under the code to include such assets of the guarantor. तो जो लैंड उसके नाम पे था गारंटर वो एसेट भी कॉमन पूल में लेना है. अच्छा. जनरल पूल ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर सीआरपी सो दैट देयर विल बी एफिशिएंट रिजोल्यूशन ऑफ द सीडी. रेजोल्यूशन ऑफ द सीडी आएगा ना. आप लोगों ने अभी जो रिजोल्यूशन प्लान करते होगे उसमें भी वो जो एक लैंड एक के नाम पे एसेट्स कंपनी के नाम पे तो रिजोल्यूशन प्लान जिसका आएगा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट थ्रू उसको कंडीशनल रहेगा कि मैं आगे जाके सक्सेसफुल कैसा होगा. कॉमन पूल में ले लिया है गारंटर का जो प्रॉपर्टी है दैट विल बी asset of the CD. Most of the time in case of personal guarantee, factory land है, it is in the name of personal director and resolution में company factory है. तो वो लैंड कैसे होगा? जब तक वो लैंड नहीं है मेरा फैक्ट्री का रेजोल्यूशन करके होगा क्या कंपनी का? सेकंड तो पर्सनल गारंटर का भी दोनों उसमें भी केस है कि लैंड पर्सनल नाम पे गारंटर के नाम पे उसका जो फाइनेंसर है वो भी एफसी जो है कॉमन एफसी है पॉसिबल है. तो फिर उसमें आगे के इसमें वो कवर किए सरफेस में वो कवर हो जाएगा. हमारे इंटर है स्पेशल विंडो विल बी पर्सनल एसेट को ऑलरेडी सर्विस नोटिस मार दिया है उसने. अच्छा क्या किया हमने पर्सनल पे सरफेस नोटिस डाल दिया. अभी रिजल्ट में सारा साथ में हो जाएगा. साथ में कैसे लेके गए? थोड़ी ना होएगा. नहीं ये मेरा एमएसए प्रमोटर जी खुद दे रहा है. तो सर इन दैट केस here it is already proposed special window will be created for CRP process that bank will dispose of first. ये जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं. नहीं तो उसमें आप क्या कर रहे हो मतलब लैंड बैंक विच No, no, promoter should propose that I will sell and pay to them. That's all. तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी ऑलरेडी होगी ना. हाँ? गारंटी ऑलरेडी गारंटी पे ली. गारंटी का पैसा दे रहा हूँ ना. गारंटी छोड़ा के पैसा दे रहा हूँ. गारंटी छोड़ने पैसा देना. सजेशन है इसमें कुछ बराबर है. वेलकम अमेंडमेंट. नेक्स्ट रिजॉल्विंग द इंटरडिपेंडेंट एंटिटीज वो अदर केस है जो अपन जो पहले. नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग द इंटरडिपेंडेंट एंटिटीज. रियल एस्टेट में कॉमन है लैंड किसी और के नाम पे होती है. सम डेवलपर कम्स दे डू डेवलपमेंट चीनी मिल और वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल कर देता है. तो हाउ डू वी रिजॉल्व दोस केसेस? मनीष बेसिकली आपको साथ में बैठ के ही करना पड़ेगा जैसा करवाया आपने. मेरे केस में एचपीएस है. उसमें एडजॉइनिंग लैंड दूसरे कंपनी के नाम पे है. अनलेस एडजॉइनिंग लैंड में नहीं हूं मैं क्लस्टर डेवलपमेंट में नहीं जा सकता. तो क्लस्टर डेवलपमेंट में एफएसआई डबल है. मेरा तो वैल्यूएशन में भी प्रॉब्लम आ रहा था. बैंक ने जब भी लोन दिया था उसने लोन कौन से बेसिस पे दिया था कि क्लस्टर बनेगा एसेट होगा उसका वैल्यू क्या. और अब मैं वैल्यूएशन करने जा रहा हूं तो मेरे को बोल रहे कि आप एक ही एसेट कर दो. दूसरा में तो है ही नहीं. तो मेरा वैल्यूएशन तो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा. So in that case you have to sit with the promoter and COC and then decide. It is not सर आप सीधा सी बात है आप फैसिलिटेटर का जॉब कर रहे थे वहाँ प्रमोटर और इसके बीच में. अदरवाइज होगा ही नहीं. वो होगा ही नहीं अदरवाइज रिजॉल्व. मेरे को तो आप देखो ही मत. वैल्यूएशन के लिए देखो ना मेरे को सीआरपी के लिए सोचो. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेकिन सरफेसी में नहीं कवर रहेगा तो नहीं होगा वो.
जो पर्सनल गारंटर का एसेट सरफेसी में कवर नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट उसको सेल नहीं होगा। रिजॉल्विंग इंटरडिपेंडेंट एंटिटीज, जो इसके पहले के जो केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सिंगल सीडी था, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे। इसमें अलग है, मल्टीपल सीडीज है। हाँ, सीडी मल्टीपल है। जस्ट लाइक वीडियोकॉन केस जो हुआ है पैरेलल इसमें, तो ग्रुप कंपनी इज एक्स, दे आर different CDs, A, B, C, D, 4 companies है. There will be the operational and financial synergies are there. Now, if one company faces the problem, what about the other related company? All will face the problem. So, how you will take this resolution plan for that? That is the problem. So, here they have basically value maximization. It is being considered there may be a common A, IP, and CD. वीडियो कॉल कॉपी कर लिया। Video call code. वीडियो कॉल कॉपी किया। This is from COC of 2 or more cities may apply to AA seeking cooperation and coordination. This is from both point of view, AA and IP point of view, first point. And second point is from COC point of view. The COC point of view is 2 or more CDs may apply to AA seeking cooperation and coordination of CRPs concerning the CDs. So there will be only one RP who will handle all these cases. There will be रियल एस्टेट में भी हो सकता है।